اور اب یہاں بات کریں گے ملتان میں ماہ رمضان میں گراں فروشوں کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے 132 گراں فروشوں کو گرفتار کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے پرائز ایکٹ پر 25 لاکھ جرمانہ عائد کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کی روہی سے خصوصی گفتگو ہوئی، ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں ماہر عمران سے۔ ماہر اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، بات کریں گے رمضان المبارک میں گراں فروشوں کے خلاف ایک جو خصوصی مہم چلائی گئی، اس حوالے سے کتنے جو گراں فروش، کتنے جو مہنگی اشیاء جو فروٹس ہیں، جو سبزی ہیں، جو مختلف اشیاء خوردنوش ہیں، بیچنے والوں کو جرمانے اور سزائیں کی گئیں، اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ملتان کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، ماہ رمضان کا جو مہینہ تھا، وزیر اعلیٰ صاحبہ کے بہت ہی اسٹرکٹ ڈائریکٹیوز تھے کہ جی اس میں جو ہے عوام الناس کو مکمل ریلیف دینا چاہیے، اور پرائز کنٹرول کے حوالے سے تھا کہ ہمارے جو 41 پرائز مجسٹریٹس تھے انہوں نے پورے مہینے کے دوران کو 21,000 انسپیکشنز کی، 25 لاکھ کے قریب جرمانہ کیا، 28 لوگوں کے خلاف FIR ان کو گرفتار کیا۔ تو اس کا پرپس صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم عوام کو یہ بتا سکیں کہ جی بالکل پرائز کنٹرول مجسٹریٹس اور حکومت جو ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے ہمہ وقت اور دن رات کوشاں ہے۔ تو الحمدللہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ بھی آیا ہے۔ اوورآل ملتان نے جو پرائز کنٹرول کی پوزیشن ہے اس میں بھی بہتر طور پہ ٹاپ 10 ضلعوں میں شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ان کی ویژن تھی اس کو ہم مکمل طور پہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نیا ہمارا آرڈیننس آیا تھا اس کے جو ہمارا سیکشن 7 اور 10 ہے اس کے مطابق جو ہے ہم لوگ اس کا جرمانہ کرتے ہیں۔ کسی نے ریٹ لسٹ ڈسپلے نہ کی ہو، کوئی اوور چارجنگ کر رہا ہو، کسی کے پاس کوئی ایکسپائری گڈز پڑے ہو، تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دکانداروں کو تو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے، ان کے خلاف FIR بھی کی جاتی ہے، اور جو بہت زیادہ کر ان کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اور گراں فروشوں کو بھی یہ میسج ہے کہ وہ زائد قیمتوں پر جو مقررہ ریٹ ہیں اس سے بڑھ کر اگر فروخت کریں گے تو ٹیمیں مکمل طور پر متحرک ہیں، اور اس حوالے سے بڑے جرمانے اور مقدمات کا اندراج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو حکومت کی ریٹ لسٹ ہے پنجاب ایپ کے ذریعے سے معلوم بھی کیا جا سکتا ہے، شہریوں سے بھی استدعا یہ کی جا رہی ہے کہ وہ پہلے ریٹ چیک کریں اور اسی طرح جو ہے وہاں سے وہ چیزیں خریدیں۔ اگر زائد قیمتوں پر دے رہے ہیں تو فوری طور پر رپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ بھی کیا جائے۔ ماہر عمران، بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے۔ انکم سپورٹس سینٹر پر بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، خواتین روزے کی حالت میں خوار ہو رہی ہیں، دھکم پیل سے متعدد خواتین بے ہوش ہو چکی ہیں، پولیس اور سیکیورٹی نہ ہونے سے ٹاورٹ مافیا سرگرم ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خادم حسین سمرو سے، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ ایس اے ہائی اسکول احمد پور شرقیہ میں، جہاں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی رقوم مستحقین کو دینے کے لیے سینٹر بنایا گیا ہے۔ کچھ خواتین رش اور بھگدڑ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، باقی کچھ خواتین یہاں کھڑی ہو کے احتجاج کر رہی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا تکلیف ہے اور کیا شکایات ہیں۔ جی بی دس کیا مسئلہ ہے؟ چوتھا جھگڑا پھر تو والے سے نہیں نے شفارت چلتی پئی ہے، دریا نو پیچھے دروازہ بند کرتے، پیچھے انگوٹھے لاتے، پیچھے پیسے گھنتے، اتنے شفارت چلتی پئی، رشوت گھنتے پہ۔ ہاں جی، سانو 8 دن ہو گئے سکول دے وچ آندیاں نو، 8 بجے اندر وڑ کے بہ جانے، نہ کوئی پکھا ہے نہ گرمی، اتنے چڑھ کے پیچھے دی پیچھے آئی جاندے نے، سناسی کارڈ 20-25 دے جاندے نے، وہ کھڑا ہو کے پیسے دیندا ہے۔ جی، آپ نے سنا، خواتین کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ یہاں جو ہے نظر رکھنی چاہیے، جو بیوگان اور یہ مستحق خواتین آتی ہیں دور دور سے، ان کی پیمنٹ جو ہے وہ روزانہ کرائے میں ہی میرے خیال میں پوری ہو رہی ہے۔ جی خادم حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ عید کی خوشیاں گھر والوں کے ساتھ، ملتان میں مسافر عید منانے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے ہیں۔ ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش لگ گیا ہے، کیا کہتے ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے۔ جی بالکل، چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں گھر والوں اور بچوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کا گھر واپسی جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں۔ یہاں پر پردیسیوں اور مسافروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ عید کی چھٹیاں گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے ٹرین کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ٹکٹ بہت مہنگی ہے سر، ٹکٹ کے بہت یعنی کہ پہلے سے بہت زیادہ ہے، ابھی تو بہت زیادہ ڈبل ریٹ ہو گیا ٹکٹ کا، کیا سمجھ، اسی وجہ سے ابھی ملتان میں کچھ گفٹ خریدے ہیں وہ بھی بہت مہنگے پڑے ہیں بس۔ اچھا، تو بچوں کے لیے گفٹ خرید کے لے کے جا رہے ہیں، گھر والوں کے لیے خریدے ہیں، کیا چیز خریدے ہیں؟ جی کپڑے خریدے ہیں، کچھ گفٹ ہیں خریدے ہوئے، بہت مہنگے ملے ہیں، یعنی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہ جہاں عید کی خوشیاں ہیں وہاں جو ہے مہنگائی بھی کافی زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ میں کراچی جانا چاہ رہا ہوں، ابھی گاڑی آنی ہے، گاڑی کی انتظار میں بیٹھا ہوں، مگر یہاں ٹکٹ ماشاءاللہ سے بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ یہاں اب کیا کریں، غریب بندے اب کچھ لے کے نہیں جا پا رہے بچوں کے لیے،
टिकट बहुत महंगे हैं यहाँ पर। ट्रेन आएगी तो ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हैं, ट्रेन आएगी फिर टिकट लेंगे तो फिर जाएंगे। ऐसी हजरात जो हैं वो महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आला हुकाम से यही मुतालबा किया जा रहा है कि एक तरफ ईद की जो है टिकटों में जो ख़ास तौर पर कमी की जाए इस खुशी के त्यौहार पे, ताकि जो परदेसी हजरात हैं जिन्होंने तकरीबन 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद घर जाना होता है, वो आसानी से टिकट ख़रीद के अपने घर जाके ईद की खुशियाँ मना सकें। जी शुक्रिया राना बिलाल। मौसम में तब्दीली के बावजूद निमोनिया के वार जारी हैं। बावलपुर में 24 घंटे के दौरान 6 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां हफ्ते निमोनिया से 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दम तोड़ने वालों की तादाद 89 हो चुकी है। यहाँ पर आपको निमोनिया के कारोबार के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बावलपुर में 24 घंटे के दौरान 6 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां हफ्ते निमोनिया से 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। दम तोड़ने वालों की तादाद की बात करें, अब तक 89 हो चुकी है। और दूसरी जानिब बहावलपुर में गैस्ट्रो के शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में गैस्ट्रो के 75 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 53, विक्टोरिया अस्पताल में 23 बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को रमज़ान में खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, 23 मरीज मजीद विक्टोरिया अस्पताल में रिपोर्ट हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि गैस्ट्रो के 75 मरीज रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। 24 घंटों के दौरान बहावलपुर में गैस्ट्रो के शिकार मरीजों की तादाद बढ़ गई है। यहाँ आपको बताते चले, ईद से कबल मोटरसाइकिल चोर बेलगाम हो गए हैं। मसाजिद के बाहर नमाजियों की मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें आम हो रही हैं। सैटेलाइट टाउन से एक ही रोज में 4 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। और आपको बताते चले कि वार लोग काट कर 2 मोटरसाइकिलें चोर जो हैं वो ले उड़े हैं। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार भी वारदातों को रोकने में बेबस दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का पुलिस के नाकिस कारकर्दगी पर नोटिस लेने का मुतालबा। जनूबी पंजाब में बिजली चोर और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एक रोज में 147 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। बिजली चोरों को 93 लाख और 93,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए हैं। 7,78,000 रुपए जुर्माना मौके पर वसूल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर बिजली चोरों को 93,93,000 रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया है और 7,78,000 रुपये जुर्माना मौके पर वसूल किया गया है। विहाड़ी से अब आपको खबर देंगे, विहाड़ी में नाकिस मशरूबात की रोकथाम के लिए PFA मुतहरिक हो चुका है। फूड सेफ्टी टीम की जूस प्लांट और 200 सोडा वाटर जो है फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन की गई है। यहाँ पर आपको बताते चले 500 लीटर मिलावटी जूस, 75 किलो एक्सपायर्ड केमिकल्स भी बरामद किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि 2 सोडा वाटर फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन की गई है। 500 लीटर मिलावटी जूस, 75 किलो एक्सपायर्ड केमिकल्स, 135 लीटर गैर मयारी सोडा वाटर तल्फ किया गया है। जूस फैक्ट्री को 50,000 रुपये और सोडा फैक्ट्रियों को 40,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। यहाँ बात करेंगे, CPO मुल्तान की पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग हुई। SSP ऑपरेशंस मुल्तान और SSP इन्वेस्टिगेशन हमरा थे। CPO ने क्राइम की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया है। अफसरान को क्राइम कंट्रोल करने, अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको बता रहे हैं, CPO मुल्तान की पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग हुई। SSP ऑपरेशंस मुल्तान और SSP इन्वेस्टिगेशन हमरा थे। CPO ने क्राइम की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। अब सियासत की दुनिया से आपको खबर देंगे। NA 148 मुल्तान का मुमकिन ज़िमनी इलेक्शन, अहमद हुसैन डेहड़ एक मरतबा फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। अहमद हुसैन डेहड़ का नून लीगी क़यादत से राब्ता। अहमद हुसैन डेहड़ का NA 148 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल मुल्तान के हल्का NA 148 का मुमकिन ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के साबका टिकट होल्डर व साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ एक दफ़ा फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। अहमद हुसैन डेहड़ ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता किया और हल्का NA 148 से पार्टी टिकट जो है वो दोबारा पार्टी से मांगा है, जिस पर पार्टी के सीनियर रहनुमा का उनको ये जवाब था कि आप कायद मुस्लिम लीग नून के फैसले का इंतज़ार करें और उसी के बाद ही
इलेक्शन के बारे में वाज़े जो मौक़िफ़ है वो पार्टी का आएगा कि आया वो मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार की हिमायत करेगी। इसके साथ साथ अहमद हुसैन डेढ़ के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि अहमद हुसैन डेढ़ को अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं भी मिलता तो वो आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि उनको सिकंदर बोसन ग्रुप और इसके साथ साथ रां बरादरी जो है, रां ग्रुप जो है, हसन रां ग्रुप, उसकी भी हिमायत हासिल होगी। जबकि इस हवाले से अहमद हुसैन डेढ़ ने ईद के तीसरे रोज़ जो है वो अपने हलके का मुशावरती इजलास भी बुला लिया, जिसके अंदर वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो हलके की आवाम से जो है वो और अपने ख़ास जो उनके दोस्त और रुफ़का हैं उनसे मुशावरत भी करेंगे। जबकि हल्का N 148 जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेटर मुंतखब होने के बाद मुमकिना तौर पर वो की रुकनीत से इस्तीफ़ा देंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का N 148 का जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया जुनैद। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। रहीमरा खान में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच ने गंदम की कटाई का आगाज किया है। 7,15,000 एकड़ पर गंदम काश्त है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम सदीक से। आसिम आगाह करें। खान में गंदम 7,15,000 एकड़ पर काश्त है और गंदम इस वक्त पककर तैयार है। जो किसान की मेहनत है, गंदम के खोशे जिसे गोल्डन खोशे कहा जाता है, ये सोने के खोशे अब इतने पककर तैयार हैं कि किसान को अपनी मेहनत वसूल होती हुई नजर आ रही है। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच ने बाकायदा तौर पर गंदम की फसल की कटाई का आगाज कर दिया गया है। जावेद इकबाल वड़ाइच साहब, आप खुद भी जिम्मेदार हैं और बाकायदा तौर पर आपने इसका आगाज भी कर दिया है, तो क्या समझते हैं कि ये रहीमया खान की जो फसल है वो किस तरह से है और किसान इससे क्या उम्मीद लाए बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, रहीमया खान ज़िला ज़री ज़िला है। यहाँ पे हमेशा मुल्क को यहाँ से गंदम अच्छी दी है, काटन अच्छी दी है, गन्ना अच्छा दिया है। यहाँ पे इस दफ़ा तकरीबन 7 लाख एकड़ पे गंदम काश्त है और गंदम की काश्त भी बहुत अच्छी है, बम्पर क्रॉप नज़र आ रही है। मगर किसानों को नज़र नहीं आ रहा कि उनका मुआवजा जो, देखिए खादें कहाँ चली गई, बीज कहाँ चला गया, तेल कहाँ चला गया, बिजली कहाँ चली गई। और ये वाहिद फसल है गंदम की जो इस दफ़ा पीछे आई है। इस तरह किसानों को अगर उनका मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये मेहनत नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। मुल्क को गंदम की ज़रूरत है, इसका मुआवजा किसान को सही मिलना चाहिए। अगर किसान को इसका मुआवजा सही मिला तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में गंदम कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अब लोगों को मसला है, यहाँ पे बारदाना नहीं दे रहा, फूड बारदाना नहीं दे रहा है तो कोई 5-6 एकड़ पे दे रहा है। कहाँ जाएंगे ज़िम्मेदार? उन्होंने मेहनत की है, वो देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त किसानों का साथ दे और इंशाअल्लाह ताला गंदम हर साल इसी तरह होगी। हर साल गंदम इस तरह से होगी, उम्मीद की जा रही है। मुझे ये बताएं कि जब किसान अपनी फसल को इस तरह से देखता है, जैसे आप कह रहे हैं बम्पर क्रॉप है, तो इस बम्पर क्रॉप को देख के किसान के अंदर क्या उम्मीदें जागती हैं? देखिए, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। गंदम को हम जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है हमारे आगे जो खर्चे होने हैं पूरे साल के। देखिए, काटन का 2-3 साल से काटन वो हो नहीं रही, अब सिर्फ और सिर्फ गंदम पे किसानों की नज़र है। तो अगर किसान को अच्छा मुआवजा मिलेगा तो किसान भी खुशहाल होगा। जब किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। बाकायदा तौर पर गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया है, बम्पर क्रॉप करा दी जा रही है माहिरीन की जानिब से कि रहीमया खान में जो गंदम की फसल है वो बम्पर क्रॉप है, फसल पक कर तैयार है। किसान पुरुम्मीद है कि शायद ये फसल उनके अखराजात को निकाल कर कोई फ़ायदा भी दे जा सके। हुकूमती पॉलिसियों पर थोड़ा सा उन्होंने MNA जावेद इकबाल वड़ाइच ने कोई थोड़ी सी तंबीह की है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए ताकि किसानों को वहाँ पर फ़रोग़ मिल सके, ज़राअत को फ़रोग़ मिल सके, क्योंकि ज़राअत मुस्तकम होगी तो पाकिस्तान मुस्तकम होगा। तो आज बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और इस उम्मीद के साथ ये फसल इसी तरह लहराती रहे और किसान इसी तरह इसको काश्त करते रहे और पाकिस्तान को मुस्तकम करने के लिए ज़राअत को भी मुस्तकम करते रहे। जी सही, शुक्रिया आसिम सदीक। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, MNA जावेद इकबाल वड़ाइच ने गंदम की कटाई का आगाज़ कर दिया है। जावेद इकबाल वड़ाइच ने खुद ट्रैक्टर चलाकर गंदम की कटाई का आगाज़ किया है।
पंजाब में 40 लाख एकड़ पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बहावलपुर में 18,69,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की जाएगी। मुल्तान में 9,45,000 एकड़ पर, डीजी खान में 7,53,000 एकड़ पर और सरगोदा में 1,97,000 एकड़ रकबे पर कपास जो है वो काश्त की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सूबे में कपास की काश्त के अहदाफ का जायजा लिया गया है। कपास के काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि कपास के लिए सर्टिफाइड बीज और नहरी पानी फराहम किया जाएगा। कपास की पैदावारी हदफ से कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खान के कमिश्नर्स को काश्त की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी ज़राअत ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी है। मुल्तान से कपास की काश्त की बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई है। अब तक 3,80,000 एकड़ पर कपास की काश्त की जा चुकी है। लायंस मुल्तान में लेडीज हॉस्टल का इफ्तिताह किया गया है। आरपीओ मोहम्मद सुहेल चौधरी ने लेडीज हॉस्टल का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब में सीपीओ सादिक अली और डीसी रिजवान कदीर मौजूद हैं। आरपीओ ने पुलिस लायंस मुल्तान में जारी तामीराती कामों का भी जायजा लिया है। सीपीओ सादिक अली ने तामीराती कामों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी है। आरपीओ ने दफातर, रहायशगाहों और एमटी सेक्शन का भी मुआयना किया है। आरपीओ का कहना है कि तमाम दफातर और पार्क्स की सफाई और तज़ीनो आराइश को यकीनी बनाया जा रहा है। मिंचनाबाद से खबर शामिल करेंगे। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम एसएस ब्लड डोनेशन टीम की जानिब से किया गया है। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों में ईदी और तहाइफ तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं शेख गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं THQ अस्पताल मिंचनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर एसएस ब्लड डोनेशन टीम की जानिब से थैलीसीमिया के शिकार बच्चों को ईदी और तहाइफ पेश किए गए। इस वक्त हमारे साथ एसएस ब्लड डोनेशन टीम की चेयरमैन मैडम सफिया करीम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे? ये बच्चों को, हमारा मकसद यही था कि लोग देखें कि किस तरह बच्चे जो हैं ईद में और उनको रमजानुल मुबारक में किस कदर परेशानियां बनती हैं। इन बच्चों को 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 माह के बाद ब्लड की ज़रूरत रहती है और हमारा मकसद यही था, हमारा पैगाम दूसरों तक पहुंचे कि जिस तरह रमजानुल मुबारक में इन बच्चों को ईद के तहाइफ दिए गए हैं, अतियात दिए गए हैं और इस तरह हर महीने इनको अतियात की ज़रूरत रहती है। जी बिल्कुल, तहसील मिंचनाबाद में थैलीसीमिया के शिकार बच्चों की तादाद 60 से 70 के करीब पहुंच चुकी है। आज इन बच्चों को ईदी और तहाइफ पेश किए गया और इसके साथ साथ चेयरमैन ब्लड डोनेशन का कहना था कि इन बच्चों को आपके खून की अशद ज़रूरत है ताकि ये फूल मुरझाने से जी बहुत शुक्रिया। मुल्तान में मुआशरे में समाजी हमांगी को फ़रोग देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर इक़लियती उमूर रमेश सिंह, मेंबर कौमी असम्बली आमिर नवीद की शिरकत हुई। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी और इल्मी शख्सियात भी शरीक हुई हैं। मज़ीद बताएंगे सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान शहर में समाजी हमांगी को फ़रोग देने के हवाले से आज एक खूबसूरत तकरीब सजाई गई है फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से और मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है और इसके साथ साथ कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। क्या समझते हैं कि आज इवेंट तो हो गया है लेकिन इसको आगे किस तरह से लेकर चलेंगे, सोशल कोहेजन किस तरह से मुमकिन है? देखिए, जिस तरह अभी जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक चीज़ पे बात की कि ये गुफ्तम नशिस्तें बर्खास्तों वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके आगे हमें वे फॉरवर्ड लायामल तश्कील देना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी कहा कि पंजाब के अंदर हम पूरा एक स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लान बनाने जा रहे हैं। उसकी फॉर्मेशन के टाइम हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पंजाब के, वो माइनॉरिटी है, वो सिविल सोसाइटी है, वो एकेडेमिया है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जितने भी दोस्त हम उनको बुला के एक पूरा 2 से 3 दिन का हम पूरा एक वर्किंग ग्रुप बना के हम पूरा एक प्लान बनाएंगे और वो प्लान फिर हम जाकर डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ। और इंशाल्लाह जो बजटिंग है वो बजटिंग इन लाइट ऑफ प्लान होगी, रादर हम सिर्फ हवा में बातें करें। तो हमारा पूरा एक लायामल हमने तरतीब दिया। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा चाहती हैं कि पंजाब के अंदर जो अक़लियतें हैं उनको एक महफूज पाकिस्तान दिया जाए। उनका जो तस्वर है, जो कायद का तस्वर था, उसको इन लेटर स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए और इंशाल्लाह अगले 5 साल के अंदर हम माइनॉरिटी को एक महफूज पाकिस्तान पंजाब देने में कामयाब होंगे। सर, आप कोई शॉर्ट सा अगर कोई मैसेज देना चाहें आज के इवेंट के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि जो इस मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, जो मजहबी दहशतगर्दी है, फ़िरका वारियत है, गुड गवर्नेंस का मसला है, तो इसका वाहिद हल जो है वो
पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सर जोड़ कर जो हमारे कौमी मसाइल हैं उस पर मिल बैठ के कानून साजी करनी चाहिए और इसका जो वे आउट्स निकालना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो मकसद है वो हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान का मसाइल का जो हाल का जो नेशनल फोरम है दैट इज़ पार्लियामेंट। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, यहाँ पर आज की तकरीब में जो है वो यही बात की गई है कि माशरे की तरक्की हमारी उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अदम बर्दाश्त और जो उसका ख़ात्मा करेंगे और तहम्मुल के साथ और उसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। जी शुक्रिया सुहेरा तारिक।